In this lecture, we will be discussing about simple pendulum and we will also derive the expression for time period of its oscillation. But derivation start करने से पहले let us discuss the definition of a simple pendulum. तो textbook में we have two types of definitions, ideal simple pendulum and practical simple pendulum. So ideal simple pendulum is defined as a heavy particle suspended by a massless, inextensible and flexible string from a rigid support. I will repeat the definition. Ideal simple pendulum is defined as a heavy particle suspended by a massless, inextensible and flexible string from a rigid support. अभी आप कोई भी string लो, it can never be massless, right? अगर वो string कोई material से बना है तो definitely it will have some mass. इसीलिए practical simple pendulum define करते टाइम हम लोग ने massless के बदले light word यूज किया है, right? And inextensible का मतलब क्या? जब आप उस string के नीचे bob attach करोगे, bob मतलब क्या? This spherical part is called as the bob. तो bob attach करने के बाद उसका length should not change, right? एक constant length होना चाहिए. So practical simple pendulum is defined as a small heavy sphere suspended by a light and inextensible string from a rigid support. Alright, so let us begin with the derivation for time period of a simple pendulum. So let us consider a simple pendulum. This is the rigid support, this is the string of the pendulum and this spherical part is called as the bob of the pendulum. तो सबसे पहले इसका लेंथ मार्क करते हैं. तो जो लेंथ है that is the distance between point of suspension मतलब जहां से पेंडुलम को हैंग किया है and the center of gravity of the bob, right? So इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है that is called as the length और उसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे. Now let us give this pendulum a very small displacement थीटा. अब ये थीटा बहुत छोटा होना चाहिए. रीजन ऐसा है कि अगर हम लोग इसको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इसके जो ऑसिलेशंस होंगे दैट विल कम अंडर एंगुलर एसएचएम, राइट? एंड फिलहाल वी आर ओनली स्टडीइंग लीनियर एसएचएम, इसीलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग दे रहे हैं दैट शुड बी वेरी स्मॉल. तो उससे क्या होगा, ये जो बॉब ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा ना दैट विल बी ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए दिस डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी वेरी स्मॉल. तो एट दिस पोजिशन let us try to draw the free body diagram of the bob. तो सबसे पहले तो there will be this tension which will be along the string. Let us represent tension by T dash. And दूसरा there will be weight of this bob which will act vertically downwards which is mg. अब ये जो displacement हुआ है bob का, let us call that displacement as x. मतलब मीन से लेके इस पॉइंट तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है लेट अस कॉल इट एज x, राइट? नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिजॉल्व दिस mg इनटू टू कंपोनेंट्स सच दैट एक अपने को अलोंग t डैश मिलेगा एंड दूसरा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मिलेगा. सो आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन. सो इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? सो ये वाला कंपोनेंट ऑफ mg will be mg cos theta and दूसरा will be perpendicular which will be mg sin theta, right? So हम लोग ने mg को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है, mg cos theta and mg sin theta. तो यहाँ से क्लियरली वी कैन से ये जो mg sin theta वाला फोर्स है that force is providing us the restoring force जिसके वजह से ये पेंडुलम वापस मीन पोजीशन पर आने को ट्राई करेगा, राइट? So what we can write is F is equal to mg sin theta, right? But यहाँ पे ना एक माइनस साइन आएगा. माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड ये जो थीटा का डायरेक्शन है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने दिया है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आया. नाउ this theta is very very small, बहुत छोटा है ये theta, and when theta is very small हम लोग ऐसा लिख सकते हैं that sin theta is approximately equal to theta.
जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, लेस देन इवन 4 और 5 डिग्रीज, तो साइन थीटा का वैल्यूज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ थीटा ओनली। तो हम लोग इस इक्वेशन में साइन थीटा के बदले डायरेक्टली थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी गॉट एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। नाउ ये ट्राइंगल पर फोकस करते हैं, उसमें वी हैव दिस थीटा, वी हैव दिस लेंथ एल, और ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ने x बोला है। सो वी कैन से, जैसे हम लोग अगर सेक्टर कंसिडर करें, सो इफ यू कॉल दिस एज s, दिस एज r एंड दिस एज थीटा, सो व्हाट डू वी से, s इक्वल टू r थीटा। वैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू l इंटू थीटा, राइट। वी कैन से x इज इक्वल टू l इंटू थीटा। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी x बाय l, ये वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, राइट। सो वी कैन से f इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय l। अब इसमें ध्यान से देखो, m इज मास विच इज कॉन्स्टेंट, g इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी कॉन्स्टेंट, l इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो भी कॉन्स्टेंट हो गया। सो वी कैन से therefore the restoring force is proportional to minus of x, and since ये कंडीशन प्रूव हो गया, it means that हम लोग ने प्रूव किया है कि this pendulum is performing linear SHM। एंड अब जो भी लीनियर एसएचएम के फॉर्मूलाज हम लोग ने डिराइव किए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो नाउ वी कैन यूज दोस फॉर्मूलाज, क्योंकि हम लोग ने प्रूव किया है कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इट मींस दिस पेंडुलम इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। सो let us use this equation and try to find the time period of its oscillations। तो ये इक्वेशन है अपने पास, इसमें f को I am writing as mass into acceleration, so ma is equal to minus mgx by l। so यहाँ से m कैंसिल कर दिया। now this is acceleration, acceleration का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा, acceleration is equal to minus omega square x, so I am writing minus omega square x is equal to minus gx by l। तो यहाँ से माइनस कैंसिल और x कैंसिल, तो वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय l, राइट। ओमेगा मिला, नाउ वी वांट टाइम पीरियड। सो ओमेगा एंड टाइम पीरियड का रिलेशन सबको पता है, ओमेगा इज 2 पाई बाय t, राइट। सो वी कैन राइट ओमेगा के बदले 2 पाई बाय t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय l। तो रीअरेंज करके we will get t is equal to 2 pi under root of l by g, right। ये t वो साइड, l ऊपर और g नीचे। so we get the expression for time period of a simple pendulum। अब ये फॉर्मूला देख के हम लोग टाइम पीरियड कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो एक बार देख लेते हैं। so we can say time period is directly proportional to the root of length of the pendulum। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट वी कैन से टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब अगर g का वैल्यू कम होता है, सपोज हम लोग वही पेंडुलम को लेके मून पर जाते हैं, तो मून पर g का वैल्यू विल बी लेसर। तो अगर g का वैल्यू कम होता है तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। थर्ड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। देखो ये पूरे इक्वेशन में, मतलब ये जो फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है उसमें मास का टर्म प्रेजेंट नहीं है, राइट। मास तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गया। सो अगर आप 10 kgs का बॉब रखो या 20 kgs का बॉब रखो, एज लॉन्ग एज लेंथ एंड जी आर सेम, तब तक टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। टाइम पीरियड is independent of the mass of the pendulum। and last एक पॉइंट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड is independent of the amplitude which is given to the pendulum। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, देखो यहाँ पर हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट x दिया है, अगर हम लोग थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट देते या थोड़ा ज्यादा भी देते, राइट, एज लॉन्ग एज इट इज लीनियर, तो वो भी टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देखो वापस x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो हम लोग ने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। एक लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है,
जी पे कैसे डिपेंड करता है, मास पे इंडिपेंडेंट एंड एम्पलीट्यूड पे इंडिपेंडेंट। नाउ इसके बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम देखेंगे विच इज कॉल्ड एज द सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। ये भी एक टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम ही है, बस इसका स्पेशलिटी क्या है कि इसका टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। तो ऐसे पेंडुलम को हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। वी जस्ट नाउ फाउंड आउट कि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, राइट। तो फॉर सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी गेट 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके ऐसा मिलेगा 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू L बाई जी, राइट। तो यहां से वी कैन राइट L इज इक्वल टू जी ए साइड और उसके नीचे पाई स्क्वायर। सो वी कैन राइट L इज इक्वल टू G बाई पाई स्क्वायर। तो यहां से वी कैन इजीली गेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम अगर हम लोग को G का वैल्यू पता है तो। एंड अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने लेंथ का वैल्यू फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को कोई दूसरे प्लेनेट पर G का वैल्यू फाइंड करना है तो वी कैन यूज सेकेंड्स पेंडुलम। अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग को लेंथ पता है तो जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग लेंथ, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो we can easily find the acceleration due to gravity on that planet.